Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm here with a topic which is structure of a chromosome. In this cell division, we studied a lot about chromosome, but there is very complex, minute details, things in the structure of a chromosome which we need to understand so that we can join all the points or we can understand all the points of cell division very carefully and we can remember all the points. So let's discuss what is the difference between homologous chromosome, what are sister chromatid, what are non-sister chromatid, what is non-homologous chromosome. All these names we will definitely going to study in the mitotic and meiotic cell division, cell cycle. So let's understand the chromosome structure. So, let's firstly see here. We have human cell. Each and every human cell has 46 chromosomes. We have 46 chromosomes. It means 23 pairs. How they are named? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 like that. And among these 46, they are always found in, they are in pair. They are in 23 pairs. So let's assume 1 and 2 are one pair of out of 23 pairs. Okay, out of 23 pairs, 1 and 2 are in pair. It means they both have alleles for a same character. So let's understand what is character and what are alleles. So characters are basically feature. Character, feature. For what these chromosomes are responsible. Suppose we are I'm assuming everything. Suppose the one and two chromosome are in pair out and they both are responsible for the character उनका feature क्या है? They are responsible for height. What they are responsible for? Height. It means capital the 1 and 2 both the chromosome together they both 1 and 2 they both chromosome are responsible for height of the individual. So here if the chromosome number 1 has the allele for tall, chromosome number has the allele for tall, whereas the chromosome number 2 has allele for dwarf. Means what is allele? Allele is the different form of any character. I'm saying कि कोई भी अगर कैरेक्टर है, suppose in a population all the humans are not tall, all the humans are not fair, the texture of their hairs, their eye color, their ear lobes, there is a lot of variety. It indicates that for a same feature, for a same characteristic, for a same feature, there are different number of allele and there are different forms are present, and these forms are known as allele in the biological term. Different form of allele, different form of any character is known as allele. It means the both chromosome have the same characteristic but they have different allele. It is not mandatory that in every individual will have the different form of allele. They may have both the they may have the same allele in the both
chromosome. They may have capital T on both. They may have capital T small t. They may have small t. So मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक कैरेक्टर के लिए हम लोग अपने पॉपुलेशन में देखते हैं कि बहुत तरीके के वेरिएंट डिफरेंसेस, बहुत तरीके का फॉर्म हमें देखने को मिलता है, जिससे ही उसी को हम लोग जेनेटिक लैंग्वेज में, बायो के टर्म्स में, उन्हीं फॉर्म्स को हम लोग अलील बोलते हैं. किसी भी एक इंसान में अलील, जो दो क्रोमोसोम है उनमें सेम अलील होना जरूरी नहीं है. दोनों में टॉल का भी हो सकता है, दोनों में डॉर्फ का भी हो सकता है, दोनों में अलग अलग भी हो सकते हैं, टॉल का और डॉर्फ का भी. और एक क्रोमोसोम के ऊपर सिर्फ एक कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर भी प्रेजेंट हो सकते हैं एक क्रोमोसोम पे. सो हियर इस क्रोमोसोम के इस एंड पे, सपोज दिस इज फॉर द ब्लैक कलर and this is for the brown color hair. This is the black color hair and this is the brown color hair. अब जरूरी ये भी नहीं है कि इधर we always represent capital for the dominating character, means जो ज्यादा डोमिनेट करने का, जो सिंगल प्रेजेंट होकर भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, उन्हें हम डोमिनेटिंग कहते हैं. तो जरूरी नहीं है कि एक क्रोमोसोम पे सारे डोमिनेटिंग कैरेक्टर अलील्स प्रेजेंट है और एक पे सारे डोमिनेटिंग. ये भी यहाँ भी हो सकता है, ये भी इधर भी हो सकता है. एक डोमिनेटिंग, एक रिसेसिव, एक डोमिनेटिंग, ऐसा भी हो सकता है. सो जैसा कि हम लोग माइटोसिस में पढ़े कि ड्यूरिंग द इंटरफेज, एस फेज में डीएनए जैसे ही जाता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है और क्या करता है, अपनी ही कॉपी बनाता है. वी नो कि हमारा क्रोमोसोम ऐसा इंटरफेज में ऐसा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का नहीं होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. हमारा ऐसा है, ये हमारा जीवन फेज में था. ओके, नाउ जब ये एस फेज में आया तो यही डबल हो गया, बट वो डबल हुआ है बट दे आर प्रेजेंट टुगेदर. वो लोग सेपरेट नहीं है, दे आर समहाउ ज्वाइंट. तो जब हमारा वो एम फेज में जाएगा तो उसमें हम लोग मेटाफेज, प्रोफेज और मेटाफेज में जब उन लोगों का कंडेंसेशन होगा तो दे विल कंडेंस टुगेदर. वो ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए कंडेंस में. यहाँ पे भी जब वो कंडेंस हुए हैं तो जो ये एस फेज का जो हम लोग का डीएनए है जब कंडेंस हुआ है मेटाफेज में तो हमें ऐसा दिखता है. इट मीन कि एक सेंट्रोमियर पे, व्हाट इज अ सेंट्रोमियर? सेंट्रोमियर इज अ हाईली डेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम. क्रोमैटिन फाइबर का ही, उसमें भी डीएनए ही प्रेजेंट है, उसमें भी प्रोटीन्स ही प्रेजेंट है. द ओनली डिफरेंस इज दैट ये बहुत ही हाईली कंडेंस्ड है, जो कि हमें जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से दिखते हैं तो हमें वहाँ पे बहुत ही डार्क सा दिखता है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट. सो सेंट्रोमियर क्या है? वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द बोथ ऑफ आर्म. और हम अपर आर्म को, मतलब जो शॉर्टर आर्म होता है उसे हम लोग पी आर्म बोलते हैं और लोअर आर्म को हम लोग क्यू आर्म बोलते हैं. तो सेंट्रोमियर है वो क्या कर रहा है कि बोथ द स्ट्रैंड, दो वो जो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है दोनों को टुगेदर रख रहा है. तो देखो यहाँ पे ये एक ही था टी, अब यहाँ पे क्या हुआ है, उसी का एक और पार्ट बन गया है, एक और उसी का बन गया है. तो ये दोनों क्या हो गया, ये सिंगल क्रोमोसोम, और ये एक सिंगल, ये सिंगल, ये एक सिंगल, ये एक सिंगल. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स बढ़ गए हैं. Always remember the number of chromosome is equal to number of centromere. Must remember point. तो क्रोमोसोम का नंबर अगर कोई पूछे कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, देन हम लोग we always only and only count the number of centromere present. यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है, मीन्स इसमें दो आर्म्स प्रेजेंट है, एक ही सेंट्रोमियर से दो आर्म अटैच्ड है, बट स्टिल ये एक ही क्रोमोसोम हम लोग कंसिडर करते हैं, एक ही क्रोमोसोम इसको बोलते हैं.
ये वाला जो क्रोमोसोम है वो एग्जैक्टली उसका कॉपी है। तो देखो इसमें कैपिटल टी ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पे गया और इसका ये डुप्लीकेट हो गया, और ये वाला ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। तो यही है कि 1 वाला कॉपी होकर सेम सेंट्रोमियर से क्या किया है, वो 2 आर्म बनाया है, और ये वाला 2 नंबर भी सेम सेंट्रोमियर से 2 आर्म बना है। सो अब हम लोग उसे जानेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट वाले क्रोमोसोम में आते हैं। इसमें जब व्हेन वी गेट टू नो कि ये दोनों 1 एंड 2 जो है वो सेम कैरेक्टर्स के लिए सेम फीचर में उसके एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट है, तब हम लोग ऐसे वाले पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे भी इन चारों को एक साथ में बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम तो एक ही है, एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों फिर क्या हो गया साथ में। Here we'll see 1 and 2 क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। 1 and 2 क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, then let's move to the next part which is chromatids. अब एक क्रोमोसोम में सेम जीन के सेम अलील्स के क्या है, 2 आर्म्स प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा एक ही आर्म, मतलब 2 आर्म्स है, 2 आर्म है, बट क्रोमोसोम में एक ही पूरा ये एक पी एक क्यू है, यहाँ पे 2 पी 2 क्यू है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो दोनों सेम है, ये दे बोथ आर ट्विन, एग्जैक्टली ट्विन, दे बोथ आर एग्जैक्टली सेम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। वेयर एज वहीं फिर इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों भी एक साथ ही ज्वाइंट है ना। अब तो ये 1 क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम का पार्ट है ना। 1 और 2 क्रोमोसोम को तो हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम बोल दे रहे हैं, बट व्हाट अबाउट इसके आर्म्स। तो इसमें हम लोग जो यहाँ पे सिस्टर है, और ये जो डिफरेंट क्रोमोसोम के डिफरेंट आर्म्स है, एक ये वाला आर्म और एक ये वाला आर्म, या फिर ये मतलब कोई भी किसी के साथ डिफरेंट क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। The only thing is that ये दोनों जो सेम कैरेक्टर, नाउ लेट्स समराइज दिस, तो सेम कैरेक्टर्स के लिए जो भी पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उन क्रोमोसोम्स को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। और उन क्रोमोसोम में जो 2 आर्म्स प्रेजेंट है, उन दोनों एक क्रोमोसोम से जो 2 आर्म प्रेजेंट है, अटैच्ड है, 2 क्रोमैटिड जो अटैच है, उन दोनों को हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। और वही उस क्रोमोसोम 1 के आर्म क्रोमैटिड को और क्रोमोसोम 2 के क्रोमैटिड को हम लोग नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। क्योंकि क्योंकि इस पे कैपिटल टी प्रेजेंट है, इस पे स्मॉल टी प्रेजेंट है। इस पे कैपिटल टी वाले को हम लोग सिस्टर बोल रहे हैं, स्मॉल टी वाले को सिस्टर बोल रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बोल रहे हैं। और वही जब होमो क्रोमोसोम की बात की जाएगी तो हम लोग उस क्रोमोसोम जाएंगे, लेकिन जब हम लोग when we'll talk about the chromatids, then they will called as non-sister chromatid. Now let's move towards the non-homologous chromosome. ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये हमारा क्या है 2. They both are responsible for T, capital T, small t. They are both responsible for height. They have different alleles for the height. Now we have next chromosome, which is
नाउ लेट्स सी, जो ये हमारा क्रोमोसोम है उसका नंबर डाल देते हैं हम लोग 3 4 या फिर 5 5 6 7। इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है। देन सो अब इसमें हमारे प्रेजेंट है कैरेक्टर आई कलर। आई कलर हम लोग ले लेते हैं ब्लू एंड ग्रीन, ब्लैक एंड ब्लू लेते हैं। दिस इज फॉर ब्लू एंड दिस इज फॉर ब्राउन, ये आई कलर, and this is for height and these are for eye color. Now let's see, here हमारे पास क्या है कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 2, वी व्हाट वी नो अबाउट दिस, ये दोनों क्या हमारा होमोलोगस। अब यहाँ पे देखो ये दोनों जो क्रोमोसोम है ये दोनों भी आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा होमोलोगस। बट व्हाट अबाउट 1 2 एंड 5 6, तो 1 2 और 5 6 के लिए हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों जो है दोनों का डिफरेंट फीचर है, दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फीचर। यहाँ पे इस वाली को हटा देते हैं, इससे भी बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि ये दो जो क्रोमोसोम है ये हाइट के लिए है, जबकि ये दो जो क्रोमोसोम है वो क्या किसके लिए है आई कलर के लिए। दे बोथ आर फॉर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कैरेक्टर। सो ये जो हमारा वो दोनों क्रोमोसोम है वो हमारा क्या हो जाएगा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। Let's see. 1 and 2 homologous. 5 and 6 will be homologous. 1 and 5, 1 and 6, 2 and 5, 2 and 6, ये सब हमारा क्या है नॉन होमोलोगस। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 2 एंड 5 6 हमारा नॉन होमोलोगस। That's it. This is all about homologous chromosome, non-homologous chromosome, sister chromatin and non-sister chromatin. Thank you.